Hello and a very good evening. For the past 7 days, over and over again, we have come back to this very spot here in Kolkata. You're watching this live broadcast on the News the Truth platform, which is NTT by Tamal. We do apologize for the past 2 days for some unavoidable circumstances. We could not come live, but then stories have been uploaded, published regularly on our website, which is newsthetruth.com. So in case you have missed out connecting with us on the YouTube platform, you now know there is another way to connect with us, which is newsthetruth.com, the website where stories are being uploaded regularly. Coming back to today, I was this afternoon taken aback by a phone call, and the phone call was from a gentleman who belonged to the Sikh community. और उन्होंने मुझसे ये कहा कि बाकियों ने भी आना छोड़ दिया, आपने भी आना छोड़ दिया तमाल जी। मैंने बोला ऐसा नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, दूसरे कोई स्टोरीज चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान है, लेकिन आपके मुद्दे पे मेरा ध्यान पहले भी था, अभी भी है। उन्होंने एक चीज़ उसके बाद कहा कि हम लोग सिख कम्युनिटी से है, बहुत छोटा हमारा नंबर है, इसीलिए जिस तरीके से हर कोई इग्नोर कर रहा है, आप लोग भी इग्नोर कर रहे हैं। बाकी मीडिया छोड़ दीजिए, आपसे उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं मुझे चुभा। इसीलिए आई एम बैक एट दिस वेरी लेन, विच इज़ right outside the BJP party office here in Kolkata, and this BJP party office is here on Mullidhar Sen Lane in Kolkata. And for the past 7 days, this is how the entire street looked like. People belonging to the Sikh community have been continuing with their protest against the Khalistani remark. Yes, आज 7वां दिन है जब आप देख पा रहे हैं ये प्रोटेस्ट प्रदर्शनी चल रहा है बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर। मेरे बाएं तरफ है बीजेपी पार्टी ऑफिस, और इस पूरी रास्ते में पिछले 7 दिनों से लोग असेंबल हो रहे हैं टू इन अ वे एक्सप्रेस देयर एंगर, and they are also pressed for their demand that they want an apology from the central government, from the Prime Minister, from Union Home Minister, Mr. Amit Shah. And this is how it has been for the past so many days. If I can just change the camera, let me just see if I can. So, here it is. If you can see, this is how the protest demonstration looks like, which has been on for the past so many days. Now, why are these people protesting? They are protesting because of this very incident which is on display out here on this very LED. As you see, that's the IPS officer Jaspreet Singh, and that is BJP delegation. 7 days back, it so happened at Dhamakhali, which is ahead of Sandesh Khali, there was a confrontation, and thereafter we had seen in a video footage which came out that IPS Jaspreet Singh had been strongly objecting to the word Khalistani, as he alleged that somebody part of the BJP delegation, he had categorically pointed at Shubhendu Adhikari, BJP leader of opposition, for having called him Khalistani. और उन्होंने ये चीज़ कहा, मैंने पगड़ी पहना इसीलिए आपने मुझे खालिस्तानी कहा. And that one sentence had in a way evoked emotion among people, and especially from the Sikh community, the reason why they had decided to launch this protest. CU stands with Sikh community. आप लोग सब छात्र हैं CU से? Okay. I'll just ask my producer. Aniket, is the bandwidth all fine? Can I talk to these people? All right. So my producer has given a go-ahead. So they are all students from Calcutta University. CU stands for Calcutta University, which means students from Calcutta University have also kind of joined this protest. Ma'am, आपका नाम बताइए. इशिता राय। इशिता, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, हिस्सा हुए, किस मकसद से और क्या संदेश देना चाहेंगे? আমি একজন ইন্ডিয়ান হিসেবেই আমি এখানে হয়েছি এবং একজন স্টুডেন্ট হিসেবে, তো আমি অসম্মানটাকে নিয়েছি সেইভাবেই, যেভাবে আমাদের সাধারণ ভারতবাসী হিসেবেই আমরা নিয়েছি। তো
এটা আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের হিসেব থেকেই সবার মধ্যে থেকেই একটা বার্তা দেওয়ার জন্য এসেছি এবং আমার সকল বন্ধুরাও আমাদের সাথে সামিল হয়েছে। सर आपका नाम क्या है? प्रभु रंजन वैद्य, प्रभु जी आप कहाँ से हैं? कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। कैलकट यूनिवर्सिटी से। आप सर पे जो स्कार्फ पहना है, ज़्यादातर जब कोई गुरुद्वारा में जाते हैं या फिर मस्जिद में जाते हैं तो सर कवर करके जाते हैं, आप इस जगह पे अपना सर कवर करके बैठे हैं, क्या बताना चाहते हैं सर? ये जो शुभेंदु अधिकारी ने किया है बहुत गलत किया है, ठीक है। मैंने कोई भी इंसान के भीतर से कोई इंसानियत नहीं दिखा इसमें। बीजेपी एक प्रोपागंडा दल है, संगठन है और वो यही फैलाना चाहता है। तो हमारा प्रोटेस्ट इस चीज़ के ऊपर है जे हम सब धर्म एक साथ एक आज़ादी राष्ट्र है ना, तो बीजेपी के ये सब ठीक नहीं है। सर आपका नाम बताइए सर। सायक पाल। शायक आप कैलकट यूनिवर्सिटी से क्या? हैं, आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं, क्या देखिए- कहेंगे सर? देखिए एक बात बोले, बीजेपी पूरा देश में जो कर रहा है, जो हरकत कर रहा है, ये तो मतलब इतना घिनौना काम कर रहा है। सिख जो है, सिख या सब गुरुद्वारा जो है, हम जानते हैं कितना हमारा फ्रीडम फाइटर से लेके कितना सब कुछ में जुड़े हुए हैं। उस पगड़ी का अपमान किया शुभेंदु अधिकारी, हाँ, एंटी पार्टी बीजेपी पार्टी का जो लीडर शुभेंदु अधिकारी ऐसा काम किया है, ठीक है, जो सिख धर्म का ये अपमान नहीं है, ये पूरा इंडिया का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। I see one more poster out here which reads, "We are proud Indians and not Khalistanis. CU stands with Sikh community." Mind it, for the past several days, there had been this call given out by people who had been protesting out here that this is not restricted to the Sikh community alone. It is about India. It is about the richness, the diversity that India represents. And when somebody feels offended for some statement being hurled which is sensitive and somebody feels the religious sentiment of the individual has been hurt, then in that case the hurt is not limited to one individual, it is for the entire country. Now, Shubhendu Adhikari, who has almost not really issued any statement thereafter, which he had said 7 days back that he did not make a statement of this kind and called it nothing but a propaganda by Trinamool Congress trying to divert attention from Sandesh Khali. But then over here, right behind me in that screen, they are also running video clips which are essentially attributed to one particular Bengali channel where they had claimed that they have a video footage which essentially states that Shubhendu Adhikari in that spur of the moment and while in middle of the confrontation with IPS Jasprit Singh had uttered the word Khalistani. The reason why IPS Jasprit Singh had reacted the way he did. But then I would try and go back to the people once again and speak to them. So all these people, I just came here short while back and I saw several women also part of this protest rally. They were also here and in mark of a protest, and also I saw women saying कि ये सिर्फ सिख संप्रदाय से नहीं है। एंड एक मैम थी जिन्होंने साफ साफ कहा कि आपके घर के सारे सदस्यों को बाहर आना चाहिए, क्योंकि आज अगर एक इंसान पे ये नौबत आई कि उनको वो खालिस्तानी है या नहीं है, ये साबित करने में उनको ये सवाल पूछा गया, तो शायद ये सवाल दूसरों के लिए भी आ सकता है और सवाल मल्टीप्लाई हो सकता है। सर मैंने आपको देखा, आपने इधर पे स्पीच भी दिया। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम वृक्षमित्र साहबराम बिश्नोई है। ओके बिश्नोई जी, आप इस प्रोटेस्ट में आप आए हैं, पहली दफ़ा मैं आपको आज देखा, तो क्या मकसद से आए और क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, कि तुम्हारे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। जब जब किसान से टकराया है वो मिट्टी में मिल गया है। जिस सिख कौम के खिलाफ तुम बोल रहे हो, जिस सिख कौम को तुम आतंकवाद कह रहे हो, यहाँ से आज़ादी जलाने वाला देश से कौन सी कौम है? इतिहास उठाकर देखिए। आपने कोई बीजेपी के एक भी आदमी, आरएसएस ने कोई शहादत दी है? राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, जिनके नाम लीजिए, अरे वो बंद कट गए, उन पर आरे चलाए गए, उनके गले काट दिए गए, उनको तख्ती तौलियों पर बिठाए गए, वो जब नहीं आ रहे। और तुम जो देश की रक्षा कर रहे हैं उसको तुम ये कौम बता रहे हो, तुम खालिस्तान बता रहे हो। अगर ये खालिस्तान होते तो भारत पर इनका कब्जा होता। 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर को पूरा राज दे रहे थे, इन्होंने नहीं लिया। गुरु गोविंद सिंह को पूरा राज दे रहे थे, इन्होंने नहीं लिया। और तुम ये सिख कौम कहाँ से आया? सनातन से ही आया है।
तुम कहाँ से आए? सनातन से ही आए हो, इस सिख कौम को बदनाम कर रहे हो। जब कोरोना काल के अंदर त्राई भारत कर रहा था तो उस टाइम खाना कौन खिला रहा था? जान कौन बचा रहा था? संस्कार कौन कर रहा था? हिंदू सिख कोई देख रहा था? उस टाइम सिख कौम रहा था। ये सिख कौम इसलिए बनाई है, ये जहाँ जहाँ जुर्म होगा वहाँ वहाँ शहादत देगी। मैं देश के प्रधानमंत्री को कहता हूँ, शंभू अधिकारी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। हमारे सिख समाज आईपीएस से माफी मांगनी चाहिए, किसानों से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा और ये देश तुम्हें किसी सूरत में नहीं बख्शेगा। सर प्रधानमंत्री जी जब पंजाब गए थे और दूसरी जगहों पे उन्हें देखा कि वो पगड़ी पहन के लोगों को एड्रेस किए, और आज आप कह रहे हैं कि आईपीएस जसप्रीत सिंह का जो इंसल्ट है सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, ये सबका सनातन धर्म का इंसल्ट है। तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी का कहना है कि वो पगड़ी को इंसल्ट कर नहीं सकते, उनका सम्मान करते। आपको लगता है कहना और करनी दोनों में एक फ़र्क है? ये कहनी और करनी में सबसे झूठे देश के प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में हुए हैं। नरेंद्र दास मोदी तो हुआ नहीं, सबसे बड़ा अत्याचार हुआ नहीं। किसी दूसरे का चीर हनन कर लेना, चलती हुई सरकार को गिरा देना, किसानों पर अत्याचार कर देना। अरे इतना अत्याचार तो अंग्रेजों का नहीं था, उसके अंदर भी बोलने का अधिकार था, प्रोटेस्ट करने का अधिकार था। यहाँ हम निकलते हैं, मुकदमे कर देते हैं, केस कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, समन भेज देते हैं। अरे किसान ये कहते ट्रैक्टर कहाँ से लाए? अरे पसीना हमारे बहता है। अरे हम कमाई करते हैं और वो कमाई पूरा देश खाते हैं। इसलिए तुम सिखों को मत भूले, सिख में क्या है कि योग्यता है, कि नेतृत्व करने की क्षमता है, पैसा लगाने की क्षमता है, और अन्न बांटने की क्षमता है, और शहादत देने की क्षमता है। आगे 750 किसान देश के प्रधानमंत्री, सुन लो कान खोलकर, तुमने हार मानी, हम शहादत देते आए और शहादत दे रहेंगे। पगड़ी पर अपमान कभी सहन नहीं करेंगे। पगड़ी पे अपमान सहन नहीं करेंगे, and he is extremely outraged. Well, I also want to show you something. You know, there is something which has caught my attention. Over here, you have one picture of IPS Jaspreet Singh, and it says, "We need justice for IPS Jaspreet Singh." On that same board, you also have the picture of Shubkaran Singh. Shubkaran Singh is the farmer, the 21-year-old farmer who had died in the clashes which ensued in Simbu border, and they are also trying to raise the mudda of farmer Shubkaran Singh. It says clearly, we need justice for Shubkaran Singh, and they are saying this is just not limited to IPS Jaspreet Singh. They're also in a way trying to reach out to the farmers in solidarity, express solidarity, at the same time also give out the message that it is for one and all. And all these posters, they have not come down in the past 7 days. I repeat, today is the 7th day. आज 7वां दिन है और पिछले 7 दिनों से इसी जगह पे इसी तरीके से ये प्रदर्शनी जारी है। लोग जो सिख संप्रदाय से है उनके तरफ से, और बीच में ऐसा भी हुआ लोग जो सिख संप्रदाय से नहीं है, हिंदू हो जाए, मुसलमान हो जाए, people from the Marwari community, they have all come down and they have joined this protest rally and in solidarity because they all unequivocally simply not condemned the utterance of the word Khalistani, but also said that this is also a question on somebody, on the reputation of somebody who is wearing the uniform on behalf of the country. So all these people for the past 7 days have not really moved an inch from their previous position, which is they want an apology. I will try and go to Mr. Gurmeet Singh. Gurmeet ji, आप 7 दिन से इधर पे है, बाकी सारे लोग भी आए हैं, बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया है। इस बीच में 2 चीज़ हुआ, एक तो आप लोग ने जाके गवर्नर को जाके डेपुटेशन दिया, और दूसरा है आप लोग ने चीफ सेक्रेटरी को भी एक डेपुटेशन दिया। चीफ सेक्रेटरी से जब मिले कल, क्या हुआ उस मीटिंग में? चीफ सेक्रेटरी को हमने पूरे सिख समाज का दर्द बताया। उन्हें हमने बताया कि सर, जिस तरह से एक ड्यूटी में तैनात आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह का जिस तरह से उन्हें खालिस्तानी बोल के बुलाया गया, इससे सिख कौम बहुत आहत हुई है। जो कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट, तो अब हमारी एफआईआर हो चुकी है, आप इमीडिएटली इस पर कोई एक्शन लीजिए। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आप हमें 1 दिन का टाइम दीजिए, हम सिखों के साथ हैं, सिखों की शहादत को हम लोग सब मानते हैं, इमीडिएटली हम लोग इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और मैं आपके माध्यम से और एक चीज़ बता दूं कि हम यहाँ बहुत दिन से यहाँ बैठे हैं, ना कभी ना किसी की तरफ से कोई वार्ता कहीं से नहीं आ रही है, तो हम इसको और इंटेंसिफाई करेंगे।
और इवन मैं आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से मैं आपको एकदम स्ट्रांगली बताना चाहूँगा विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्रधानमंत्री जी आई कम टू नो कि प्रधानमंत्री का भी दौरा बंगाल का शेड्यूल्ड है, 6, 7, 8 व्हेनेवर जब भी वो आते हैं तो हम अपना ये जो रोष है, जो हमारा ये प्रतिवाद है, जो हमारा ये एजिटेशन है, हम उनके सामने भी, उनके विजिट के टाइम भी हम लोग काले पताके लेके सारी सिख कम्युनिटी, सारी सिख संगत और सारे सिख संप्रदाय के सब लोग उनका भी विरोध करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि सर, आप कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री का बंगाल दौर में भी विरोध प्रदर्शनी करेंगे इस मुद्दे के ऊपर? एब्सोल्युटली करेंगे। और हमारे अपने अधिकार के लिए अगर कोई बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, तो उनको तो हमारा फर्ज बनता है ना उनको उठाना कि वो सिखों की बात सुने। जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा, सिखों की जो शहादत है इस मुल्क के लिए, जो हमारी कंट्रीब्यूशन है फॉर द कंट्री, तो वो उस पे आज इन्होंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया है। हमें आइडेंटिफाई करके ये टेररिस्ट या से कोई गलत शब्द खालिस्तानी बुला के एक आईपीएस ऑफिसर को यूज़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं इमीडिएटली प्रधानमंत्री जी आप इंटरफेयर करिए, सिखों से माफ़ी मांगिए, शुभेंदु अधिकारी को इमीडिएट में आप अरेस्ट करिए, अपनी पार्टी से निकालें, नहीं तो आपका भी जो विजिट है आपके सामने भी काले झंडे लेके सिख कौम आपके विजिट में बंगाल में भी खड़ी होगी। ये हम आपको गारंटी के साथ एकदम अथॉरिटी से बताते हैं। सर नमस्कार, आप लोग सब पिछले 7 दिनों से इधर पे प्रोटेस्ट में है सर। तो बहुतों का कहना है कि लोगों का कामकाज भी है, आप लोग सब कुछ छोड़ के इस प्रदर्शनी में है, तो ये मुद्दा रोटी रोटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर? जरूर, क्यों कि एक होती है मर्यादा। सिख का सिस्टम सबसे बड़ा चीज़ है सरताज, पगड़ी पहना हुआ कोई भी इंसान को आप खालिस्तानी बोलिएगा तो उसका मतलब क्या है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। जो सिख हमारे 10वें गुरु पातशाह जी, पंच प्यारों ने सिख बन के पगड़ी बांध के अमृत छक कर दुनिया में सारे धर्म को बचाने के लिए शहादत दिए, कुर्बानी दिए, शहीद हुए, माई भाई बाल बच्चे सब ने धर्म के लिए कटवाएं, उसको यदि एक नेता, एक पार्टी, यदि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में एक सिख संप्रदाय के लिए इतना बड़ा जो हेड है, टर्बन है, पगड़ी है, सरताज है, इसके बारे में क्वेश्चन उठाने का मतलब है पूरे विश्व में जितने भी सिख हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उतरता है। हमारे 10वें गुरु बोले हैं कि 1 लाख इंसान खड़ा रहे और उसमें एक पगड़ीधारी खड़ा रहे तो 1 लाख में वो सिख पहचान में आता है। तो इसीलिए मेरी सारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है कि ये जो वर्ड, ये जो शब्द बोला गया है इसको वापस लिया जाए, क्षमा मांगे, तभी जाके हम लोग का ये प्रतिवाद खत्म हो। सर आपका नाम बताइए प्लीज। गिरधारी नारायण सिंह। शुक्रिया गिरधारी जी। very strong statements coming out, very strong statements coming out, and all are saying that ये पगड़ी आन बान शान है, देश का शान माना जाता है। कोई अगर इस पगड़ी पे सवाल उठा लिए तो रोटी रोजी अपनी जगह, लेकिन पगड़ी के लिए और पगड़ी के शान के लिए वो लोग सड़क पे उतर सकते हैं, उसके लिए लड़ भी सकते हैं। और ये पूरा जो कारवा है ये पूरा बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर हो रहा है। ये मेरे पीछे बीजेपी हेड ऑफिस है पश्चिम बंगाल में, जो मुरलीधर सेन लेन में है, और इसी जगह पे पिछले 7 दिनों से प्रदर्शनी चल रहा है। और ये 7 दिनों में पहले दिन अगर 10 लोग आए तो दूसरे दिन 20 लोग आए, तीसरे दिन 40 लोग आए, एंड द नंबर हैज ओनली बीन स्वेलिंग अप, the number has been increasing. I also see couple of young people out here whom I'm seeing for the first time on the 7th day today, and I will try and speak to them. Sir, you all are young. आप लोग सब young है, आप लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? क्या नौबत आ गया सर कि आप अपना काम या पढ़ाई छोड़ के इस प्रोटेस्ट में आए, और क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, हम पंजाबी लोग के लिए हमारी पगड़ी सबसे एक हमारा ताज है। अगर उस ताज को अगर कोई उसकी तरफ उंगली उठाता है तो ऑब्वियसली हम चाहे यूथ हों या हमारे बुज़ुर्ग हों,
हमें उसके वजह से हमें उतरना ही पड़ेगा सड़कों पे। और ये जो इनके नेता, बीजेपी के जो नेता की तरफ से जो ये एक गलत स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि वो इस चीज़ की माफ़ी मांगे और गवर्नमेंट सबके सामने माफ़ी मांगे और उनको अरेस्ट किया जाए इनके इस मतलब जो उन्होंने गलत स्टेटमेंट एक दिया है, जो कि बहुत रॉन्ग है। क्योंकि वो हमने तो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो तो सर बहुत कोई कहेंगे, वो कोई मानेगा थोड़ी। अब चोर थोड़ी जाके बोलेगा कि हाँ मैंने चोरी की है। वो तो अब जो आसपास थे, जो ऑडिबल है पूरा, सबने सुना है और आसपास भी इनफैक्ट वीडियोस में भी कैच हुआ है शायद। तो मतलब वो तो डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ का कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। बट यही है कि मतलब ये बीजेपी लोग की तरफ से बहुत ही गलत स्टेटमेंट्स और भी देखी गई हैं। ये लोग जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट की तरफ, उधर भी मतलब ये मोदी जी अपना नहीं कोई ध्यान दे रहे हैं, वहाँ फार्मर्स को मारा जा रहा है। एक हमारा यंग लड़का 22 साल का, जिसको गोली सर में मार के, हाँ सुखकरण सिंह, उसको गोली सर पे मार दिया गया है वहाँ पे। उसका कोई रीज़न है? कोई भी रीज़न नहीं है। शांतमय प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो लोग, उनको जाने दिया जाए। बट नहीं, इनके गले में ऐसा पीछे डंडा अटका हुआ है कि ये लोग अपनी गर्दन नीची नहीं करना चाहते। और यही मतलब इनके टोटल बीजेपी के लीडरों के साथ है, जो मतलब इन्होंने समझा है कि ये देश सिर्फ हमारा है। हमने इस देश के लिए, पंजाबियों ने, सिख कम्युनिटी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और आप आज भी देख ले तो बॉर्डर्स पे हमारे जवान ही खड़े होते हैं, पगड़ी वाले ही वहाँ पे आपको दिखेंगे, जिसको ये खालिस्तानी बोलते हैं। अगर हम पगड़ी वाले खालिस्तानी हैं तो फिर हमें बॉर्डर पे क्यों रखा गया है? यही बात है। अब इनको, जो इनके लीडर हैं शुभेंदु अधिकारी, इनको आगे आना चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इनको अरेस्ट भी होना चाहिए। सर आपका नाम? हरप्रीत सिंह। हरप्रीत जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर यू आर अ यंग पर्सन, आप इस प्रोटेस्ट में आए, आपके बगल में खड़े हो के आपके दोस्त या भाई हरप्रीत सिंह ने जो कहा कि सरहद पे जो जवान हैं वो हमारे लोग हैं, ये हमारे तुम्हारे जो डिस्कशन है ये आज के तारीख में कुछ ज़्यादा हो रहा है? आपको लगता है कि ये चीज़ देश को नहीं दर्शाता, इंडिया को नहीं दर्शाता है? क्योंकि मेरे लिए सरहद पे जो है वो मेरा देशवासी है, वो भी इंडियन है। लेकिन आज के तारीख में अगर हमारे तुम्हारे डिस्कशन शुरू हो जाए तो ये क्या इंडिया को दर्शाता है? और कैसे देखते हैं आप ये पूरी चीज़ को? एक्चुअली इंडिया तो डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है, तो ये हमारे तुम्हारे ये पॉलिटिकल, ये बीजेपी, मतलब मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं बोलूँगा, पर ये पॉलिटिकल इन लोगों के लिए ये डिवाइड किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। मतलब ये हम तुम मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई, पहले तो मतलब कुछ साल पहले तक तो ये सब कुछ इतना प्रॉब्लम्स नहीं था, ये नहीं था। तो जैसे जैसे हम लोग का मांग बढ़ रहा है या कुछ भी हम लोग को दिख रहा है कि नहीं हम लोग को लेके थोड़ा पॉलिटिकल या कुछ भी हो रहा है, हम लोग को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जितना हम लोग का हक है उतना नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करना चाहिए और मतलब लड़ना भी चाहिए अपने हक के लिए। अगर जैसे हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, अगर इंडिया को आप सेकुलर कंट्री बोलते हैं तो एवरीवन हैज़ अ राइट टू डू अ प्रोटेस्ट एंड अ पीसफुल प्रोटेस्ट। तो पर वो पीसफुल बनने नहीं दे रहे हैं ना, आगे से ऐसे गोली बारूद चला रहा है, टीयर गैसेस चला रहा है, बम जो भी हो रहा है, ये सब तो पीसफुल प्रोटेस्ट का नाम नहीं है ना। तो हम लोग तो जा रहे हैं, बट वो लोग इस चीज़ को पीसफुल रहने नहीं दे रहे हैं। तो आगे से अगर डिफेंड करने के लिए कुछ हो रहा है तो उस तरफ से वर्ड आ रहा है कि खालिस्तानी लोग अटैक कर रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे पहल कौन कर रहा है। अगर पहल करेंगे हम लोग तो खुद को मरने नहीं देंगे ना, हम लोग तो ऑफकोर्स अपने आप को डिफेंड करेंगे और हम लोग को डिफेंड करने के लिए जो बेटर लगेगा हम लोग वही करेंगे। सर आपका नाम क्या है? लखविराज सिंह। लखविराज जी, आप इतने यंग में आज के तारीख में आप कह रहे हैं कि डिफेंड करना है, लड़ना है। अगर सब कोई लड़ने और डिफेंड करने में उतर आए तो क्या देश तरक्की कर सकता है? सर ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। अगर लड़ना मारना इज नॉट अ लाइक आंसर, और ये एक फाइनल वो चीज़ नहीं है ना कि लड़ने मारने से सब कुछ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन ही है लड़ना मारना। बट अगर सामने से वो चीज़ आएगा तो नॉर्मली बात है, सब कोई आपको डिफेंड करने के लिए कुछ करेगा। और एज अ ब्लड, मतलब जो ब्लड हम लोग का बहुत गर्म है, नॉर्मल सा बात है। सब ऐसे नहीं कि सिर्फ पंजाबी, सब कोई जो यंग जनरेशन होता है बहुत ब्लड बहुत वार्म होता है, मतलब बहुत गर्म होता है। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो स्ट्राइक सबसे पहले करता है कि फिर से उन्हें डिफेंड करने के लिए कि हम लोग भी सामने से कुछ ना कुछ करें, जिससे आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं, मारने के लिए प्रोटेस्ट नहीं है।
नहीं, इसीलिए आप ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन ही कर रहे हैं। ताकि ये सब कुछ शांति से हो सके, सब कुछ अच्छे से हो सके, सामने से भी पॉलिटिकल भी हम लोग को। आपके आपके दोस्त लोग कभी आपसे सवाल पूछे, आप उनसे कभी कह पाए कि ये प्रोटेस्ट किस लिए है? क्या आपके दोस्त लोग हैं जो शायद सिख संप्रदाय से नहीं है, क्या उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, उनका रवैया क्या था? क्या आपके सेंटिमेंट के साथ वो लोग जुड़ पाए? हाँ, बहुत जन ऐसे हैं जो जुड़ पाते हैं। अगर देखा जाए तो ये जैसे किसान अभी एमएसपी के लिए हैं, और भी जो जो उन लोग के डिमांड्स है कि जिन लोग के ऊपर एफआईआर हुआ था सब वापस किया जाए, जिन लोग के लिए भी फार्मर्स आए हुए हैं, अगर आराम से बैठ के समझाया जाए तो ये बहुत लॉजिकल बात है, समझना चाहिए भी सबको, क्योंकि ये एक लॉजिक हो रहा है ना। ऐसे कोई भी उठ के आके प्रोटेस्ट कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। तो कोई एक लॉजिक है, कोई एक बेस है, उसके लिए हम लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। ऐसे हम लोग तो पागल नहीं कि अपना काम धंधा छोड़ के आके प्रोटेस्ट करने चालू हो जाएंगे। कोई एक हर एक चीज़ का बेस होता है, उसी के ऊपर प्रोटेस्ट होता है। Okay, so the sentiments which are running very strong and high out here. Firstly, let's clarify. I'm standing right outside the BJP party office. If any BJP leader walks out, I'm more than willing to talk to them. But then I do not see anyone out here. So I don't know if I can approach somebody for the other side. And the other side so far has maintained, which is the side of the BJP, they have maintained that they never said the word, and this is all but politically motivated to divert the attention from Sandesh Kali, pinning the blame squarely on Trinamool Congress. But hey, has that really cut the ice? The answer is no, because for the past 7 days, this is how the lane right outside the BJP party office had been looking like. For the past 7 days, this LED is on, and where this very video of IPS Jaspreet Singh, and that very moment where he resisted the name calling of Khalistani allegedly being hurled to him by Shubhendu Adhikari, as he has alleged, that video and the entire encounter is on in loop. So anyone passing by this very lane, which is completely under the seas of the protest, people are seeing it, and they are saying the protest will not die down. In fact, now they are upping the ante against BJP with their demand, where they are saying that the Prime Minister, the Home Minister will have to apologize. Upping the ante, they are now saying that if the Prime Minister and the Home Minister, they do not take a stand on this, if they do not take any action against Shubhendu Adhikari, then when Prime Minister comes to Bengal, which he is scheduled to, mind you, the Prime Minister's schedule is already tentatively being told that he is expected to hold 3 rallies in Bengal in the first week of March. We are not specifically giving out the dates because the official confirmation from the side of BJP is still pending. But now they are saying that if the Prime Minister, as and when he comes down to Bengal, they would also be showing him black flag. उनके सामने भी प्रदर्शनी होगा, और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री की अटेंशन आकर्षण करने के लिए, नज़र आकर्षण करने के लिए काला झंडा भी दिखाया जाएगा, ताकि वो प्रोटेस्ट वो लोग और स्ट्रॉन्ग कर पाए और एक स्ट्रॉन्ग प्रदर्शनी हो. लेकिन फिलहाल के लिए जो नज़रिया है बीजेपी पार्टी ऑफिस के बाहर, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स लाइक. देयर आर पीपल हु हैवंट रियली लेफ्ट द स्पॉट फॉर द पास्ट 7 days. अगेन आई से, आज 7वां दिन है. फॉर द पास्ट 7 days, the issue of Khalistani, quote unquote, the Khalistani jibe issue is on and burning. For the past 7 days, all these people are saying that they are simply asking for an apology. And now, given the fact that there is also a complaint with Bhawanipur police station in Kolkata, which has been converted into an FIR, where unknown people from the BJP party have been named, unidentified people have been named. Well, where is that investigation standing? It's something we still have to figure out, because so far we haven't really heard anything from police as far as this case is concerned. Mind it, over here, the FIR, a photocopy of the FIR has also been pasted right here. The complaint was lodged on 20th of February. On 23rd of February, the same complaint with Bhawanipur police station was converted into an FIR, and that FIR, because it's an FIR where sections like 295A and 5052 and 34 IPC have been invoked, and 295A is basically when the religious sentiment of somebody is hurt, the section is slapped, and both 295A and 505 section 2 are non-bailable sections. So where is the investigation standing? Which direction the investigation is going? It's again something you have to wait and see. But at the moment, what I can see, and I'm sure through our channel even you can see, the protest is on. Why did I come back? I came back because of that one line. When somebody called me and said
कि हम लोग सिख संप्रदाय से है, बहुत छोटा एक कम्युनिटी है, इसीलिए सब कोई इग्नोर कर रहा है, आप भी इंडिपेंडेंट मीडिया होकर आप इग्नोर करेंगे? जवाब उसका है नहीं, इसीलिए वापस आए। ना हम संदेश खाली से नज़र हटाए है, ना इससे नज़र हटाएंगे, ना फार्मर्स प्रोटेस्ट से नज़र हटाए है, ना कोई राजनीतिक मुद्दों से नज़र हटाएंगे। लेकिन ये मुद्दा क्योंकि it is still on, it begs attention. All they're asking for is apology from the top leaders of BJP, because according to them, that will set the right precedent. Young people are saying this has become a common culture to name call, divide people on the lines of caste, divide people on the lines of caste, creed, religion, names, how they look. And that, to this India, the modern, progressive, growing India, is unacceptable. The reason why the resistance has now spilled onto the street. I thank all my viewers for connecting with us. Your engagement means a lot to us, and all your feedback are always noted. Every time you have given us a feedback about Sandesh Khali, we have noted it. Every time you have given us a feedback about some other story, we have noted it. I thank you, viewers, for reaching out to me with story ideas, because you have found a window to let your story be told to the world. You wanted an independent platform, and News the Truth, NTD by Tamal, is that independent platform, because we care for people. If we have come back here, we have come back for the people, not for any political reason. We have come back here for the people because they have been seated here for the past 7 days, and that's why you have come back here. If you have gone to Sandesh Khali time and again, you have gone back to Sandesh Khali, it's because of the people, not because of any political party. Who says what against who is not our prerogative. Our priority was, is, and would forever remain the people of our country. And if somebody is upset, if nobody stands by that person, we will stand by that one single soul and would want the truth to come out and only truth be told to the world. I once again appreciate your engagement. I once again, thank you for the support. We will be winding up this live broadcast from Kolkata, from right outside the BJP party office, and we will be coming back on the live broadcast with another issue, maybe from Sandesh Khali or maybe from somewhere else. But like I said, our focus would always remain on the people and their plight, no matter how far they stay and how remote that place is. Thank you so much for watching this live broadcast. Thanks for your feedback. Take care. Good night.